if you have met a person with autism, you have met one person with autism. The next person would be entirely different, though the diagnosis would be the same. What about those parents who are in denial? What is your message to them? Because वो उनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं सब बेकार की चीजें बोल रहे हैं. What changes, or you can say what happens when you are in denial, and what changes once you accept? How is OT, special education and speech therapy? Don't you think that they are also mediums of curing? क्योंकि हम लोग सब डिनाइल मोड पे होते हैं शुरू में, हम सारे के सारे की ठीक हो जाएगा, पर एक एक दिन वो जो बच्चे का होता है बहुत प्रेशियस होता है. एंड जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, द थिंग्स टू कैच अप आर मच मोर, राइट. अगर 24 घंटे तुम्हारे को बताया जाए कि अभी इस कमरे में किसी भी वक्त बम फूट सकता है, बम लगा हुआ है कहीं पे, दैट इज द सिचुएशन आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग एवरी डे. But there is a goal, right, to make the child kind of mainstream and fit into the society. Why a child hits the parents? So she said, what about the smell of the people? You know what he wrote? He wrote, they smell obnoxious. Don't you get that question that इसके साथ कौन दोस्ती करके रखेगा और कैसे ये बात करेगा आता है? The moment he would just look at Alia Bhatt there, he would like, Mama, Alia Bhatt, I think what's that? अगर मुझे उनका कुछ भी पसंद ना आए तो मैं क्यों बोलूँ वैसे? What is the attitude which a parent should have early in life so that they navigate through their parenthood with a child on the spectrum? सिखाइए शुरू से बच्चे को कि भाई खाना खाने के बाद प्लेट धोना भी पड़ता है. मेरे कपड़े अगर गंदे हैं तो मुझे उसे वॉशिंग मशीन में डालना होगा, मेरी चादर बदलनी चाहिए, मेरा तौलिया बदलना चाहिए, मेरे को नहाना डेली जरूरी है, ब्रश ऐसे करना चाहिए. यू नो, ये मत सोचिए 15-16 साल में जाके आप सिखाएंगे, तब आप नहीं सिखा पाएंगे. और प्राइवेसी, कपड़े प्राइवेसी में ही बदलने हैं. So this podcast is about Spectrum Relight, the awareness on parents who are having children on the spectrum. And we're going to talk about the delightful experiences on the spectrum. So welcome to this podcast. And it's amazing to have you here. The pleasure is entirely mine. Tell me something about yourself. The best introduction is the reason I am here, you know, the reason people know me is my son Karthik. And he's 20 years old, as you all know. And maybe with like you, Solomon, because of our children, our life took a different trajectory, right? Otherwise, we would have just existed like any other person, 9-to-5 job, aa gaye, khana wana kha liya, so liya, you know, and the same routine daily. Maybe when the word autism came in our life, we realized, okay, there is a different world. There are lot many things which are happening around us and which we are completely unaware of. Now, my background is, I'm from an English honors background. मैं किरोड़ी मल कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे मतलब रीडिंग मेरा पैशन है. मतलब बचपन से अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते ना बर्थडे में गिफ्ट क्या चाहिए था, आई वुड से कि मुझे बुक्स चाहिए. और मुझे चश्मा बहुत जल्दी लग गया क्योंकि पापा मुझे नॉवल नहीं पढ़ने देते थे, तो मैं टॉर्च लगा के ऐसे ऐसे करके रात को बुक मतलब नॉवेल्स पढ़ती थी. और मेरे पापा कहते भी रहते थे कि आजकल ये बैटरी इतनी जल्दी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है टॉर्च की. बट ऑटिज्म एक ऐसा वर्ड था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था till Karthik was diagnosed with autism. So that gave a purpose to life. And I am amongst those people who firmly believe, I mean, even before I had this thing, if God Almighty has sent us here on this earth, you know, so we need to, you know, create a small difference. एक छोटा सा डेंट तो करके ही जाएंगे, ऐसे ही नहीं जिएंगे. But autism gave me a whole new purpose, and that's why I'm here, you know, to do my bit. When you heard the word autism for the first time, what went in your mind? Again, even today also, चलो अब तो I know the seriousness of it, but that time seriously कुछ भी नहीं पता था. In fact, मैंने autism नहीं, मैंने सबसे पहले ADHD सुना था. कि जब 2-2.5 साल का था तो मेरी जो मासी है, she is from Lady Hardinge Medical College, वो वहाँ की वाइस प्रिंसिपल थी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की. So she was from the medical background और कार्तिक के सारे माइलस्टोन्स डिले हो रहे थे. तो she told me, and I have an elder daughter, तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, उसका तो सब कुछ टाइम से हुआ. तो she told me, देखो माइलस्टोन डिले होना इतना सही बात नहीं, तुम एक बार चेक करा लो. तो मेरे खुद के ब्रदर है जो साइकेट्रिस्ट है, केरला में है, ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में, तो उनके ही एक प्रोफेसर के पास हम गए थे. हम केरला में थे उस टाइम पे इंसिडेंटली, तो उन्होंने ADHD टर्म यूज किया. अगेन अ न्यू टर्म, पता ही नहीं कि क्या है करके, एंड बच्चा बोल नहीं रहा था. यस, दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. हम पेरेंट्स तभी नोटिस करते हैं, लेमैन, जब बच्चा बोलता नहीं, पर उससे पहले बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं जो मुझे अब एज अ स्पेशल एजुकेटर पता चल रहा है. कि जैसे एक होता है माइलस्टोन डिले होना, ये, बट हम जब स्पीच नहीं आती तो हमको लगता है स्पीच ही नहीं है, यू नो.
तो उन्होंने बोला आप इसको एक नॉर्मल स्कूल में डाल दीजिए और स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऑटिज्म के साथ एक बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। जैसे मेरा बेटा सब कुछ लाइन अप करता था, मेरी इस डॉटर के पास एक छोटा सा प्रैम था, डॉल का जो परएम्बुलेटर होता है, वो हमेशा उसको एकदम उल्टा कर देता था और उसकी व्हील को ऐसे ऐसे घुमाता रहता था। एंड वी यूज्ड टू वंडर क्यों कर रहे, कभी भी प्रैम ऐसे नहीं चला रहा है, ठीक है। या कोई पेपर ले लेगा तो पेपर को ऐसे 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 करके फ्लिप करेगा या कॉर्नर ऑफ द आई से देखेगा। एंड दैट इज जस्ट, ही वाज हार्डली 2 at that time. Hard, not even 2. तो I used to ask the pediatrician कि क्या बात है, बच्चा ऐसे ऐसे करके क्यों देखता है, या बेडशीट देखेगा ना तो वो ऐसे इसको ऐसे गैदर कर लेगा और उसको ऐसे ऐसे करके देखता रहता था, बिल्कुल ऐसे अब उसको पेरिफेरल विजन भी बोलते हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आता था, ये सब चीजें हमने कभी देखी नहीं है। पीडियाट्रिशियन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, ठीक है, कि हाँ कई बच्चे डिलेड होते हैं, कई बच्चे देर से करते हैं। सो आई टुक इट लाइक दैट ओनली। So you waited? हाँ, मतलब नहीं, आई स्टार्टेड स्पीच थेरेपी immediately because that was what was told to us, ठीक है। एंड स्कूल, प्ले स्कूल में भी डाल दिया था, क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस भी इतना नहीं था। क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होता है तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो फर्स्ट चीज स्टार्ट करते हो। क्योंकि ऑटिज्म में हमने ये देखा भी हुआ है कि उनके माइलस्टोन, कई बच्चों के माइलस्टोन डिले होते हैं, उनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। दैट मीन्स जिस तरह से आप सुन के चीजों को समझते हो, देख के, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव, ये सब टर्म्स जो है सब मेरे को तो ये सब चीजें मालूम ही नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। और मैंने इंसिडेंटली मेरी सिस्टर से मुझे पता चला था कि नहीं, आपको जो है ओटी सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। आपके सेंसरी जो हमारा लर्निंग पिरामिड का फाउंडेशन है उस पे वर्क करता है। स्पीच, कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब तो बहुत टिप में आती है, ऊपर आती है। तो मैंने भी वो सारी चीजें बहुत लूज की, क्योंकि देयर वाज नोबडी टू गाइड। और हम स्पीच थेरेपी कराते रहे, जो आज भी कई पेरेंट्स पहले वही कराते हैं। तो ऐसे भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ। Were they effective? No, actually I landed up with a speech therapist who was equipped enough to handle children or people who had, hearing impairment. So for autism, it's a different ball game altogether. आप hearing impaired student की तरह एक autistic बच्चे के साथ speech therapy नहीं कर सकते. So if I could understand clearly that अगर बच्चा नहीं सुनता तो डॉक्टर्स को लगता है कि वो hearing का प्रॉब्लम तो नहीं है. हाँ. तो because of that, they normally recommend a hearing specialist to go and check whether he is able to listen to the sounds or not. And because of that, a lot of time gets wasted. That test is mandatory. Okay. But the problem is, हम सारे waste कहाँ होते हैं ना, हम speech therapy के पीछे ही भाग रहे होते हैं. Speech therapy has how long was the speech therapy for? How much time did you wasted in the speech therapies? Almost 3 years. 3 years. हाँ, क्योंकि कार्तिक 2 से पहले ही शुरू कर दिया था. He never told me. In fact, I used to keep on asking. मैंने जो बताया lining up और ये peripherally देखना, तो मैं पूछती थी क्या बात है. तो he used to say कि अरे आप पढ़े लिखे पेरेंट हो ना, आप लोग गूगल करके ना बच्चे को लेबल करने में लगे हुए हो. Who said this? The speech therapist said this. The speech therapist told me. ठीक है. Okay. So he also never recommended OT. My sister, younger sister, recommended OT. And जब तक by the time मैं OT के पास पहुंची, कार्तिक almost 6 years का हो चुका था. उसका अर्ली इंटरवेंशन पीरियड, जो हम सबसे क्रूशियल माइलस्टोन बोलते हैं, आप हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा में सुनते हो ना, 0 से 6 इयर्स तक जो है सबसे क्रूशियल पीरियड है, ब्रेन का प्लास्टिसिटी मैक्सिमम है, वो वाला जो क्रिटिकल पीरियड चला गया. तो सोलोमन, जब मैंने वो फेस किया, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है. What is the age group typically of early intervention? 0 to 6 years. 0 to 6 years for occupational therapy. For everything. For everything. Any developmental delay. And that could be anything. There is a golden period for everything. 0 to 6 years only. हाँ, 0 to 6 है. उसके बाद होता है, पर ब्रेन का प्लास्टिसिटी जो होता है, जो मैलिबिलिटी हम कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होना लगता है. सी, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, बट जो प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन, जो एक्सेप्टेंस है, मैक्सिमम इस पीरियड में होता है. और जितना इनपुट आप इस टाइम पे दोगे, वो रिजल्ट्स, वो जो बच्चा फ्लरिश करता है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. पेरेंट्स को कभी भी वेट एंड वॉच अप्रोच तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि हम लोग सब डिनायल मोड पे होते हैं शुरू में, हम सारे के सारे की ठीक हो जाएगा. पर एक एक दिन वो जो बच्चे का होता है बहुत प्रेशियस होता है. एंड जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, द थिंग्स टू कैच अप आर मच मोर, राइट. द वे अ 2-year-old child will be analyzed would be very different from a 6-year-old child. 6 years में these things a child would be able to do. 2 years में ये चीजें बच्चे कर सकता है. अब गैप बढ़ता जा रहा है, हर दिन बच्चा तो बड़ा ही हो रहा है, तो वो
गैप और भी बढ़ेगा ना. सो इसीलिए ही सबसे पहले, क्योंकि मैंने वो खोया, मैंने अपने आप को पहले अर्ली इंटरवेंशन एक्सपर्ट ही बनाया. मैंने ये सोचा जो चीज मेरे साथ हुई ना, चाहे किसी पेरेंट को कड़वा ही क्यों ना लगे, पर मैं ये दूसरे किसी पेरेंट के साथ नहीं होने दूंगी. एंड आई वुड, जैसे ही मेरे पास पेरेंट आता भी था तो मैं इंसिस्ट करती थी, आप भले ही मेरे से स्पेशल एजुकेशन मत लीजिए, पर आप ओटी शुरू कर दीजिए बच्चे का, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जितना जल्दी कवर अप होगा, यू सी चिल्ड्रन गेटिंग मेन स्ट्रीम. So the sequence is first OT and along with that speech and language. Speech and language therapy and special education. Special education में एक्चुअली एक मिथ होता है, लोग ये समझते हैं कि हम रीडिंग राइटिंग ही सिखाते हैं बच्चों को. और क्या होता है उसमें? स्पेशल एजुकेटर जो होता है सबसे पहले बच्चे को सोचना सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है. अगर आप एक स्टैकिंग कप्स आपने देखे हैं, है ना, बच्चों को हम बचपन में खेलने को देते हैं. बड़े कप में सबसे छोटा कप डाल दोगे तो मिडिल वाला कप कोई भी जाएगा नहीं ना. कौन सिखाएगा? वो स्पेशल एजुकेटर ही सिखाता है कि बाबू ये आपको थोड़ा सा चेंज करके देखना है, देखो पहले सेट बाय सेट ही जाएगा. या आप पी कबू खेल रहे होते हो, मम्मी छुप नहीं गई, मम्मी स्टिल देयर, यू नो, एंड व्हेन शी जस्ट रिमूव्स द क्लॉथ यू कैन सी योर मॉम वंस अगेन. सो मेकिंग द चाइल्ड थिंक, मेकिंग द चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्व, ये स्पेशल एजुकेटर का एक बहुत बड़ा रोल है. प्लस मैंने जब कोर्स किया तो मेरी टीचर ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे बताई थी, एंड आई हैव हैट्स ऑफ टू माय टीचर्स जो मेरे स्पेशल एजुकेशन के थे, अनीता मैम, गीता मैम, देयर आर नो वर्ड्स टू थैंक देम. उन्होंने ये भी बताया, बेटा आप ना एक ब्रिज हो ओटी और स्पीच थेरेपी के बीच में. वॉट एवर गोल्स दे टेक, इनकॉर्पोरेट दैट इन योर स्पेशल एजुकेशन एंड देन डू द थेरेपी, देन डू द थेरेपी प्रोटोकॉल, which I have always followed, and because of that I could bring a lot of changes. I could, you know, even equip parents. So one way I do is I incorporate both these things, plus I train parents a lot. Whatever protocol I'm administering, I tell the parent, this is the reason I'm doing it and you have to follow this up. Definitely you will see changes. Interesting. I think it's all about the timing. Yes. It's all about the timing. हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए भी आपको पता है गोल्डन आवर होता है ना, सेम इसके लिए हमारा भी गोल्डन आवर है. Got it. Golden years है rather. एक सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म चलता है बिकॉज ऑटिज्म इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ गेयरिंग अप कि उनको समझ आ रहा है कि हाँ व्हाट इज ऑटिज्म, बट दे स्टिल डू नॉट हैव एनी अवेयरनेस. एंड आई हैव आल्सो सीन पेरेंट्स, ऑटिज्म है या स्पेशल चाइल्ड है या कुछ भी है, तो फिर थोड़ा सा उनका आइडिया रहता है कि यार हमारा बच्चा अगर इनके साथ रहेगा तो इनकी तरह ना बन जाए. क्या ऐसा सच में होता है? No, I would beg to differ here. First and foremost, yes, imitation is one of the earliest form how we learn or acquire knowledge in this world. And special education में सबसे पहले imitation skills ही बच्चे को सिखाया जाता है. ठीक है? The way you dress up, the way you carry yourself, alright. We have learned it, we have picked it up from somewhere or the other. We got influenced by it. ठीक है? But that doesn't mean कि एक neurotypical child अगर एक person with autism के साथ होगा तो वो उसकी तरह बन जाएगा. ये कभी नहीं होता. So it's a myth, right? That's entirely. But again, it's society के अंदर. Acceptance की बात है. सोसाइटी के अंदर एक there's a mockery first of all because I think the awareness is not around. Does a child with special needs has a similar kind of a treatment as shown in Tare Zameen Par? More or less, yes. If I talk to many parents, you know, they always tell me we are not invited in many of the birthday parties, right? I know friends जिनके खुद के फैमिली मेंबर्स अगर घर में गेस्ट आने होते तो अरे इसको जरा बाथरूम में या दूसरे रूम में ले जाओ, यू नो गेस्ट आने वाले हैं. मुझे लगता है एज अ पेरेंट सबसे पहला स्टेप towards any road of development or recovery or therapy is accepting the fact that my child has autism or my child has developmental delay or Down syndrome or intellectual disability. अगर आप पहले उस चीज को accept कर लोगे ना, फिर आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़े फाइटर या एक दीवार होते हो, you know, who is ready to fight with anyone, you know, for your own child. एंड आपके अलावा और कौन करेगा? आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, अगर आप काले हो तब भी सोसाइटी आपको बोलती है, ठीक है, नाक मोटी है तो भी बोलती है, तो ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो बहुत ही बड़ी चीज है, राइट? इवन अ स्मॉलेस्ट डेविएशन वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, क्योंकि देयर इज अ सेट वो ना कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी या दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन. यू नो, सबसे बड़ी बात तो पेरेंट को एक्सेप्टेंस का है, और वो पेरेंट जितना जल्दी कर लेगा ये जर्नी आसान हो जाएगी. बीइंग अ मदर ऑफ अ 20-year-old चाइल्ड, आई कैन से इट विद कन्विक्शन कि मैंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया. मे बी मैंने बताया ना, अवेयरनेस इतना नॉलेज भी नहीं था, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि जो है भाई एक्सेप्ट करके हम स्टार्ट कर दे, काम शुरू कर दे. अभी तो कंफ्यूजिंग, मतलब गूगल ही इन इटसेल्फ कंफ्यूजिंग है. तो मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट ये था कि आपकी से, बिकॉज यू एक्सेप्टेड, बट व्हाट अबाउट दोस पेरेंट्स हु आर इन डिनायल? व्हाट इज
your message to them? Because वो उनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं सब बेकार की चीजें बोल रहे हैं. What changes, or you can say what happens when you are in denial, and what changes once you accept? So if you can tell me both the sides कि जब पेरेंट डिनाइल में होता है तो उसका एटीट्यूड कैसा होता है और एक्सेप्टेंस होता है तो उसके लिए क्या फायदा होता है. डिनाइल मोड वाला पेरेंट ना अक्सर क्योर में घुसा होता है, तो दे विल ट्राई ऑल दीज अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स व्हिच दे फील विल क्योर ऑटिज्म. एंड आई कैन क्लियरली से कि ओके नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर सिटिंग दिस डेट टुडे देयर इज नो क्योर फॉर ऑटिज्म बिकॉज आवर चाइल्ड इज नॉट सिक. बीमार नहीं है कि उनको क्योर करना है, ठीक है. इट्स अ डिसऑर्डर. जितनी जल्दी आप इंटरवीन करोगे बच्चा उतनी जल्दी मेन स्ट्रीम लेवल तक आ जाता है. आई नो चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू रेगुलर स्कूल्स हु आर ब्रिलियंट एकेडमिकली, एंड आई नो चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्पेशल स्कूल्स एंड हु आर ऑन अ केयर गिवर ग्रुप. सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म, ठीक है. डायग्नोसिस एक यही है और यही स्पेक्ट्रम है. जब हम डिनायल मोड पे होते हैं ना, हम बच्चे का एक एक दिन खराब कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है अब ठीक हो जाएगा, अब इस क्योर से हो जाएगा. जो एक्चुअल थेरेपीज, जो एक्चुअल स्पीच, लैंग्वेज, ओटी, सारी जो उसके एक्चुअल नीड्स है उस पे फोकस किए बिना हम वो क्योर मैकेनिज्म्स के पीछे भाग रहे थे, तो एक एक दिन हमारा खराब हो रहा है. So one question I have, how is OT, special education and speech therapy, don't you think that they're also mediums? So what exactly these are? What are these called? Aren't they means of curing? No, they're not means of curing. You're not trying to fix something. But you're trying to do something with the child. Yes. Yeah. So what exactly do you call this? These are all called therapy. They are rehabilitation techniques. Okay. We all are rehabilitation professionals. But there is a goal, right? To make the child kind of mainstream and fit into the society. Again, there's a... True. So the OT will see ki, okay, they will do an evaluation. If each one of us have our evaluation manuals, which are standardized world over tests, and then we assess a child, and particularly the diagnosis. Okay, in fact, I think we should tell the steps also. The first thing is to get a diagnosis. And the diagnosis is done by a clinical psychologist or a developmental pediatrician. So they are authorized by the government, the Rehabilitation Council of India. Yes. They have a license to do that. Once we have the diagnosis, then comes the therapy according to the diagnosis. They will suggest, they will give recommendation also. And the most primary recommendations are occupational therapy, speech and language therapy, as well as special education, apart from behavior modification, depending on the child's level. So my question is that how effective are this roadmap? How effective is this roadmap? If the assessment has been done very well, right? If each one of the professionals have narrowed down the goals and started administering, including the parent also. This is a multidisciplinary team. You also were mentioning that there are verbal and non-verbal. What do you mean by that? Okay, so there is a percentage of children, again I don't have numbers, who from the limited or you can say from the experience which you have, you have, I'm sure that you've trained a lot of parents and children. What is that? I mean, how many children were non-verbal and how many were verbal and how many were both non-verbal, verbal? Okay, there are children like Karthik who do speak, but that could be basically need-based communication. So, or even there are children who are high functioning. They may speak about very higher things, but a day-to-day conversation becomes tough for them. And then we have non-verbal or non-speaking persons with autism. Again, because I think in India we need to take a statistics of all these things. This should be included. Because we don't have much of data. No, we don't have. We don't have, yes. And for that, again, we parents have to take, once the census start, we need to come out and say, then only we could represent. So now these people, they come, some of them obviously do not communicate at all. Then you see a lot of behaviors, a lot of frustration in these children. Do you know how they express their frustrations? Yes. They may hit their parents, pull hair. Why a child hits the parents? If I have something to tell you, supposing I have a tummy ache, all right, or a headache, and I'm not able to tell it to my parent, what will I do? Some form or the other, I will try to express it, and that expression can be self-inflicting, injurious behavior or injuring the person in front of you because the person is not able to understand. So that is one reason. I recently, when I went to Vadodara for a workshop,
parent workshop and teachers training program. One good thing I learned there was many parents were trying alternative and augmentative forms of communication, AACs. So they were using, apps like Avaz, or children were typing, and they were expressing themselves beautifully. And one example happened right in front of me. The child was very, very fidgety. He didn't want to sit for the assessment. So I asked the child, what do you want me to do? Tell me, write it down. I will do as you say. He just typed in my laptop, tired. So I understood that he was tired. He didn't want to get the assessment done. I said, you are free. Please go. So until the time he couldn't communicate that he was tired, he didn't write. He was so fidgety. He was making a lot of noises, and we couldn't understand why he was doing it. But then it suddenly clicked that this child types, So that is one good thing. And one beautiful example I had was my friend is a AAC trainer there, Ritu Rase. Her son is also a non-speaking adult in the spectrum. She asked one of her students, how was school today? So this child replied, it was good. But she said, did you learn anything? So he said, the school thinks that they are teaching a lot of things for our benefit, but it's actually not so. You know a lot more than that. You wanted to talk about SPDs. Sensory processing disorder, yes. Actually, हमारे बच्चों में जैसे कार्तिक है, बहुत सारे, मैं तो कितने न चूँ. There are a lot of sensory issues, जैसे मैंने बताया. कई बच्चों को टच, कोई चीज छूना बहुत पसंद है. कई बच्चों को छोटी सी भी आवाज आके कान बंद कर देते हैं या लाउड नॉइज को अपने कान के पास लाके सुन रहे होते हैं. ठीक है. कई बच्चों को नहीं पता होता, पेंसिल से अगर लिख रहे हैं तो इतना जोर की कर रहे कि लोग भी टूट रहे, पेपर भी फट रहा है. These ऐसे सब काफी चीजें जब दिखते तो कई बार प्रोफेशनल्स भी अचानक अननोइंगली कमेंट बोल देते कि यार ये तो बिहेवियर है. ठीक है, बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है. दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल पेरेंट्स कि सारा कुछ बिहेवियर नहीं होता है. एक्चुअली में उनको द वे दे इंटरप्रेट द सेंसेस, द 7 or 8 सेंसेस रादर विच वी हैव. 5 तो नोन है, टच जो है टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ऑडिटरी, ये सब जो 5 है, प्लस वेस्टिबुलर जो मैंने बताया, जो हमारा बॉडी बैलेंस इन द इनर ईयर, प्रोप्रियोसेप्टिव जो हमारे हर जॉइंट में होता है. हाँ, जो विच टेल्स मी कि मुझे अगर एक ग्लास ऑफ वाटर उठाने तो कितने फोर्स से उठाना चाहिए कि वो गिरे ना, या मुझे कितने प्रेशर से लिखना चाहिए कि मेरा पेपर ना फटे, या इतना भी हल्का ना हो कि पेपर में निशान ही नहीं आ रहा है. ठीक है. और उसके अलावा इंट्रोसेप्शन, ओके, हाँ, दैट इज द इनर विच इज इनसाइड अस, विच टेल्स मी कि मुझे अभी भूख लग रही है, या मुझे आई वांट टू गो एंड यूज द वॉशरूम. वो भी इफेक्टेड होता है. तभी कई बार बच्चे बाउल मूवमेंट्स में कंट्रोल नहीं कर पाते. खाना पेट भर भी जाता है, फिर भी खाते रहते हैं. दे डोंट गेट द फीलिंग ऑफ फुलनेस. हाँ, Interoception sense जो कहते हैं. That's very little known about it, Now, why I am talking about the sensory system is, मेरी ही फ्रेंड जिनका मैंने बताया था, ऋतु का, जो AAC के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उनका बेटा, एक दिन उनके घर में होली के टाइम पे गेट टुगेदर हो रहा था. There were 30 people and all उसके बेटे अक्षत के ही फ्रेंड्स थे and all families थी. And अक्षत was creating a lot of noise. तो ऋतु ने मुझे फोन करके बोला कि मैम ये इतना ज्यादा इरिटेट हो रहा था, इतना, it was embarrassing. तो मैंने कहा why don't you ask him, क्यों वो इरिटेट होता है. एंड ही राइट्स, तो वो तो कम्युनिकेट करता है. तो अक्षत ने लिखा, इसने पूछा, तूने पूछा व्हाई डिड यू क्रिएट सो मच ऑफ रकस, डोंट यू लाइक टू हैव पीपल अराउंड. ही वाज लाइक, आई लव टू हैव पीपल अराउंड, बट इट वाज द स्मेल ऑफ द पीपल. सो शी सेड, व्हाट अबाउट द स्मेल ऑफ द पीपल? यू नो व्हाट ही रोट, दे स्मेल obnoxious. Now that was his words. That was his exact words. Obnoxious is a word which a normal graduate also doesn't use, तो Ritu said कि I cannot tell people that you smell obnoxious. What should I say? So he wrote, at least tell them to wear new shirts when they come to our house. So this is the sensory system. इतना मतलब hyper sensitive या hypo. Hyper means I will be avoiding that sense and hypo means I will be seeking all those senses, ये होता है हमारे बच्चों का world. Plus वो लोग हमेशा fight और freeze mode में भी होते हैं. वो तो हम भी होते हैं. हाँ, पर हमारे बच्चों में वो ज्यादा होता है. सोचो अगर 24 घंटे तुम्हारे को बताया जाए कि अभी इस कमरे में किसी भी वक्त बम फूट सकता है, बम लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है, तुम्हारी
तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी. That is the situation our children are facing every day, which we brush aside saying कि यार ये तो behavior दिखा रहा होगा करके, you know. तो वो एक चीज हमको as a parent समझना है, as a professional समझना है, उन चीजों को एड्रेस भी करना है. और सैडली ये बात भी सही है कि सारे सेंसरी प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं. और अक्सर जो होता है बच्चा वो सेंसरी प्रॉब्लम से काफी टाइम तक झूल रहा होता है या कोपिंग मैकेनिज्म्स बड़े होके भी वो नहीं कर पाता है. बट दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ व्हेन यू हैव अ चाइल्ड विद ऑटिज्म. एंड द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू इन दिस, यू नो. देयर इज अ फेमस saying, if you have met a person with autism, you have met one person with autism, the next person would be entirely different, though the diagnosis would be the same. हाँ, this is the only disorder जिसमें आपको ये variety दिखती है, पर diagnosis एक ही होता है. Okay. Umbrella एक ही है. Karthik is 20. Does he understand the opposite gender? Does he have any attraction towards the other gender? Strangely, this was a question I asked the neurologist also, you know, last time when I met him. He has not shown any attraction towards the other gender till now. So I asked him, what about wet dreams, you know, because our children, they do, some of them, they do start masturbating and all. So I said कि when he does it, how he does it is, हमारे बच्चों में ना perspective taking नहीं होता. उनको लगता है अगर उनसे छुपा हुआ है तो किसी को भी नहीं दिख रहा. तो typically Karthik what he would do is जाके लेट जाएगा बेड पे रात को. When he goes to bed, वो शीट डाल लेता है अपने ऊपर से and then he will be feeling himself. Obviously you can make out, you know. And we as parents, older parents होते हैं, we teach our children कि okay, this is something you do privately, you can go to the bathroom and do it, you know. And इसकी जो बताना होता है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है बताना, you know, करने को. Which means he has feelings. Obviously he has, ठीक है. I don't know, मतलब he's getting that pleasure of touching and all. But I have not seen him touching any lady or anyone, you know, that way. Though he doesn't understand personal space. Unknowingly, he'll go too close to a person. Like if he's walking past, he won't maintain that distance. But it is not to feel. But having said that, I know children who went, because I was a principal of a special school also in Yakens. So wahan pe I had children who would, you know, like to come and touch and feel your skin, you know, especially if you're wearing sleeveless, or touch your tummy and all that. So again, it's a mixed bag. So it could be that they love the feeling of the skin which is there, or it could be that they are really getting attracted to the other sex, you know. So yes, our children do have emotions, because again, as I said, I mean, my friend asked her non-verbal son ki, would you like to fall in love, you know, would you like to have a girlfriend, because he was an adult. So he said, yes, I would like to fall in love, but the girl should look as beautiful as Madhuri Dixit or Deepika. And the only time I've seen Karthik blushing is when he sees Alia Bhatt. I mean, Alia Bhatt, it was his craze. The moment he would just look at Alia Bhatt there, he would like, Mama, Alia Bhatt, I think what's that? By the way, Alia Bhatt says that she's also on spectrum. She says that she's ADHD. So first of all, I want to understand that the proportion of boys and girls who are on the spectrum in autism, what is the proportion of boys and girls? I have heard that 80% of, मतलब पूरा वो लेते तो 80% boys हैं जो spectrum में जिनको ज़्यादा diagnosis होता है, girls का कम होता है. And yes, because I'm a special educator, I have more male students than female students, you know. मतलब hardly I have 3 or 4 girls as students, and most of the others are all boys. When I go for assessments and all, यही ratio देखा गया है कि boys are more and the girls are much lesser compared to it. So again, the question here rises because that child, then they are in the teenage and then they are in the adolescence. And I'm sure that definitely there's a void, there's a gap of a companionship. So how does teenage turned adolescent try to fill that void? Because I think parents will be at certain point. Don't you get that question that इसके साथ कौन दोस्ती करके रखेगा और कैसे ये बात करेगा, आता है? ये तो पता है, छोटे बच्चों के लिए माँ बाप बोलते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके भी peer groups उनके साथ खेलना नहीं चाहते. See, most of the children with autism, they're very good with older adults, the adults or children who are older to them or the younger ones. अपने peer group के साथ उनका interaction बहुत कम, limited ही हो पाता है, क्योंकि peer same age का है, उनके पास उतना patience नहीं
होता है, ठीक है. एंड एज दे आर ग्रोइंग ओल्डर, जैसे कार्तिक भी ओल्ड इज गेटिंग ओल्डर, ही इज 20, तो वो जो फ्रेंडशिप वाला पार्ट ना और भी कम होता है. द ओनली प्लेस वेयर ही गेट्स टू मीट हिज फ्रेंड्स आर इन हिज स्कूल, व्हिच हैपेंस. He has friends at school. He has friends at school, but I don't see an interaction with them. What is the kind of basic level of interaction he does? They may sit together. It would be more like a coexistence I've seen rather than an actual interaction, like the way we would do hug or, It's not very social, but there is some connection there. Maybe yes, there could be. Because I think if he's a silent and a quiet boy and he goes and chits and the other person is also willing to spend time quietly, which means there is a connection. Maybe a parallel kind of, is coexistence. That's awesome. That's amazing. But with the high functioning kids, yes, I have seen them talking to their peers. What happens is they don't know how to take the conversation further. Yes. Like you and I, if we meet, we would do some small talks. Like we started with today, it was very hot outside. These children, they don't know how to do small talks, उनके लिए जो है वही है, मतलब. And I happen to take language classes for an older person. She's not in the spectrum, but developmental delay or epilepsy है. तो she used to tell me कि मेरे ना दोस्त नहीं बनते, तो मैं क्या बातें करूं उनसे. तो मैंने कहा देखो, अगर आप मिलते हो तो आप उनको ऐसे क्यों नहीं बोलते कि अरे आज आपने जो ये टी शर्ट पहनी कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, कहाँ से लिया, ऐसे करके. Okay. तो मुझसे कहते अगर मुझे उनका कुछ भी पसंद ना आए तो मैं क्यों बोलूं ऐसे. उनको ये स्मॉल टॉक ये सब की वो सोशल वैल्यू Too direct. जो है वैसे ही. Nice. So again, ठीक है, this is a high functioning वाला जो है, that high functioning kids have a challenge with respect to not taking the conversation further. तो उनके conversation फिर कैसे होते हैं? It is more of कई बार scripted ही लगता है, उनको. Though I am working, I mean I have these group sessions and I'm fortunate. In fact, I always say मेरे बच्चों ने मुझे एक अच्छा टीचर बनाया because they literally forced me to think out of the box and learn things which are not even covered in the course. Do you have anything to share? Any breakthroughs which you were able to manage? Yes, I mean there I cannot name my students, but there are these 3-4 kids who Let's say Ananya, or let's say Karthik, yeah, or let's say Ashish. So ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने ना मुझे things like theory of mind, मतलब दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से सोचने पे मजबूर किया. आपको एक सिंपल एग्जांपल था, एक पिक्चर में बच्चे को पिक्चर डिस्क्रिप्शन करा रही थी और उस पिक्चर में एक बॉय था जिसके पीछे एक बर्ड थी. तो मैंने उस बच्चे से पूछा अच्छा देखो क्या उसको पता है उसके पीछे बर्ड है, बिकॉज द चाइल्ड कुड सी द बर्ड. उसने कहा हाँ उसको पता है बर्ड है. तो मैंने उसकी मम्मी को बोला इसके पीछे कुछ रखो. एंड आई वाज टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास क्योंकि कोविड का टाइम था तब मैं ऑनलाइन ले रही थी. एंड दिस चाइल्ड इज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, एकेडमिकली और ऑलराउंडर टाइप है. तो उसकी मम्मी ने उसके पीछे कुछ चीज रख दी. वो टर्न किया, उसने देख के बोला ये चीज है. मैंने कहा नहीं आप टर्न मत हो, उसके बिना टर्न किए आप मुझे बताओ आपके पीछे क्या रखा हुआ है. दैट इज हाउ ही रियलाइज के बिना टर्न किए मेरे को नहीं पता चलेगा कि मेरे पीछे क्या रखा हुआ है. सो जो चीज इन बच्चों को दिखाई देती दे अज्यूम कि सबको वो दिख रहा होगा, वो सेम होगा. लाइक इफ इट इज हॉट फॉर मी नाउ आई विल अज्यूम ओके यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम. You may feel different. But don't you think that that's something which even we feel? No, we do understand. Now, I will tell you, I used to do a small experiment with children. Okay. So imagine this is a box, ठीक है, एक पिगी बैंक है. इस पिगी बैंक में मैंने क्या करा, crayons रखे हुए थे, तो बच्चों को दिखाया और मैंने पूछा इसमें क्या है, ये क्या है. तो उन्होंने सबने बोला पिगी बैंक है. मैंने कहा और इला के ऐसे आवाज की. मैंने कहा इसमें क्या होगा, सबने बोला कॉइन्स है. तो हमारा इट वाज अ ग्रुप क्लास चल रहा था और एज ग्रुप था 9 ईयर्स से 16 ईयर्स तक के बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे. 6-7 बच्चे थे उस दिन क्लास में. तो मैंने एकदम पिगी बैंक खोल के दिखा दिया. मैंने कहा देखो इसमें तो क्रेयॉन्स है. सबने देखा क्रेयॉन्स है. मैंने कहा ऐसे करते हैं, हमारे जो मम्मी डैडी जो बाहर बैठे हुए ना, अगर हम उनसे पूछेंगे इसके अंदर क्या है तो वो क्या बोलेंगे. दैट एज ग्रुप में वो 7 के 7 बच्चों ने बोला क्रेयॉन्स. किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो तो अंदर आए ही नहीं है. उनको पिगी बैंक देखते ही वो पहले कॉइन ही बोलेंगे. सो दैट इज पर्सपेक्टिव टेकिंग. वो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन विद ऑटिज्म में डेवलप नहीं होता. Why? That is theory, that is missing. That is one of the criteria कि thinking from the other person's perspective is not there. तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़े selfish है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, I, me, myself वाला. But actually यही reason है कि they lack theory of mind, many of them. So is there a way to develop the theory of mind? Yes, obviously.
obviously. Then we do take, we do things like, perspective taking. We do teach them empathy. We do teach them things like, socially acceptable kya hai, kya nahi hai, rule by rule. But then also, all said and done, कभी एकदम out of the blue एक नया scenario आता है, तब हमें लगता है अरे ये तो हमने cover ही नहीं किया, ये भी था. Because communication is so dynamic, ऐसा कुछ आप उसको एक कैप तो लगा नहीं सकते कि हाँ this is the end of communication. ये आ गया तो सब कुछ आ गया. Podcast is going into my curiosity because I am trying to understand कि और क्या क्या है, because I think you've got a huge knowledge base and things like that. And you also mentioned that you worked as a consultant and content creator with EdQueries. What exactly were you trying to be a part of, and was it helpful in the theory of mind? Was EdQueries one of the... More than that, I will tell you, our children are, okay, you are also parent. तुमने देखा होगा आपकी डॉटर, जो तुम्हारी डॉटर है, वो विजुअली चीजें ज्यादा जल्दी ग्रास्प करती है ना? बहुत सी चीजें विजुअली ग्रास्प करती है. उसको अगर सामने दिखाया जाए तो वो चीजों को जल्दी पकड़ लेती है. अगेन ये थियरी ऑफ माइंड में मैं एक चीज और बताती हूँ कि हमारे बच्चे विजुअलाइजेशन नहीं करते. मैं तुमसे अगर बोलूं, सॉलमन, डोंट थिंक अबाउट अ डायनासोर राइट नाउ. I will think about a dinosaur. You will think about a dinosaur, right? मैं एक दिन क्लास ले रही थी. क्लास लेते वक्त मैंने मेरे ये वन ऑफ द मोस्ट हाई फंक्शनिंग बच्चों को मैंने बोला, ओके, डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड. ठीक है, ही वाज डिस्क्राइबिंग डोनट, स्ट्रॉबेरी flavored donut. So मैंने कहा, okay, you get into details of it. Tell me, how is the smell of a fresh donut when you break the bread? How does it, the aroma, how is the aroma? How soft is the bread? Describe it, the, sprinklers on it. Now, when the boy started describing that thing, his mother and my mouth started watering. In fact, right now, my mouth is watering because I'm thinking about a strawberry filled donut, okay? And the child was describing it as a matter of fact. That salivation was not happening. So he's describing, but he's not visualizing the whole thing. So there's no emotion there. No emotion and no picture. Visualization not happening. So he just scripted. It's just scripted. Okay. बता रहा था. EdQueries जैसे platform में, this was started by Dr. Sridhar Bodapati. He's a pediatrician who got into content writing and all. What we realized is, अगर हम हर पढ़ाई की चीज को, हर एक्टिविटी को हम एक गेम फॉर्म में बना देते हैं, उसमें विजुअल दे देते हैं, तो बच्चे को सीखने में मजा आएगा. अब इसके पीछे भी कहानी है. कार्तिक को ना MRP नहीं पढ़ पाता था. MRP इतना छोटा सा लिखा होता है, और MRP रीडिंग, क्योंकि उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी 14-15 साल की उम्र में. एंड दैट्स हाउ डॉक्टर श्रीधर हैपेंड टू कॉल मी एंड आई सेड कि सर, एंड आई वाज अ पेरेंट एट दैट टाइम, कि सर ऐसा एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आप ऐसा गेम बना सकते हैं जिसमें MRP बड़ा बड़ा लिखा हो, तो कि बच्चे को MRP का फंडा समझ में आ जाए. तो उन्होंने कहा, मैम आप ऐसा करिए, आप PPT बना लीजिए, प्रोडक्ट्स के फोटो. उन्होंने मुझे बोला, आप वेबसाइट से, जो शटरस्टॉक से मेरा पेड है, आप निकाल लीजिए, और आप निकाल के मुझे लिंक भेज दीजिए और MRP डाल के दे दीजिए, मैं आपका गेम बना दूंगा. तो मैंने बड़े बड़े ब्रेड का, मतलब एग्स और पता नहीं क्या कुकीज, ऐसे काफी सारी चीजों का मैंने MRP बड़ा बड़ा करके उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके भेजा. इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट गेम आई डिजाइन्ड फॉर EdQueries एज अ पेरेंट. एंड डॉक्टर श्रीधर वाज काइंड इनफ, उन्होंने उसको गेम बना दिया. और कार्तिक को पहली बार फंडा पता चला, भैया MRP ये होता है और ये प्रोडक्ट में लिखा होता है. इस तरह देन ही आस्क्ड मी टू come on board and he said, why don't you suggest, make games for us. So हमने picture comprehension के, and one good thing we did about EdQueries is, हमने बोला हम इसमें Indianized context रखेंगे. डॉलर्स नहीं होगा, रुपीज होगा, इसमें हॉट डॉग नहीं होगा, इसमें समोसा होगा, एग्जाम्पल देना होगा. ठीक है, तो दैट वे वी ट्राई टू क्रिएट इंडियन कंटेंट, वी ट्राई टू गेमिफाई ऑल द थिंग्स, जितनी चीजें कर सकते हैं. इनफैक्ट ग्रेड 3 तक की काफी चीजों को, जिसमें हमने इन्फ्रेंसिंग थियरी ऑफ माइंड डेवलप किया कि इन्फर आप कैसे करते हो. आप क्लूज देके इन्फर करते हो ना, लाइक अ डिटेक्टिव, कि अभी यहाँ पे दूध छलका हुआ है और आपको ये दरवाजे सब बंद है, पर अचानक से बाहर से आपको बिल्ली की आवाज आ गई, तो आप इमीडिएटली डिड्यूस कर लोगे ना किसी वक्त तो बिल्ली इस रूम में आई थी, तभी दूध छलका था. सो ऐसे हमने गेम्स बनाने स्टार्ट किए. सिंपल मैथ्स के भी गेम्स, 2+2=4 वो करना, या आफ्टर नंबर बिफोर नंबर, बस CVC वर्ड्स, साइट वर्ड्स इंग्लिश के, कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज को, इमोशंस को भी. सो फॉर ओल्डर चिल्ड्रन वी डिवाइज्ड गेम्स लाइक व्हाई इज दिस पर्सन हेल्पिंग द अदर पर्सन, सो द अदर पर्सन इज विजुअली इम्पेयर्ड, तो उसको स्ट्रीट क्रॉस करने में हेल्प कर रहे, शुड वी हेल्प पीपल लाइक दिस. सो ऐसे भी गेम्स, सोशल कम्युनिकेशन, बहुत सारे गेम्स हम लोगों ने किए थे. इनफैक्ट EdQueries
Categories has around 5,000 games, and every day we are increasing the games, and we are taking feedback from other special educators, parents, schools to improvise the site each day. आज भी मतलब हम लोग कोई ना कोई टेस्टिंग चली रही होती है. Now we are working a lot on young adults, क्योंकि अगेन सोलोमन बच्चों के लिए बहुत चीजें हैं हमारे यहाँ, बहुत गेम्स, बहुत टीचिंग लर्निंग मटेरियल है. जैसे ही कार्तिक एज ग्रुप पे जैसे 16-17 आते ना, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत कम है. किसी ने उस तरफ को सोचा ही नहीं है. एंड इनफैक्ट दैट्स वन थिंग, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं गवर्नमेंट को या जहाँ पे भी जो भी पॉलिसी मेकर्स है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, 15 साल की स्कूलिंग के लिए अगर हम अपने बच्चे को भेजते हैं, चाहे वो इंक्लूसिव सेटअप हो, चाहे वो स्पेशल सेटअप में अगर बच्चा आ रहा हो, तो स्पेशली इंक्लूसिव सेटअप और जो मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम स्कूल है, ऑल दी चिल्ड्रन आर नॉट एजुकेबल. सारे बच्चे 12वीं तक पढ़ाई में अच्छे नहीं होते स्पेक्ट्रम में. तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री, आई वुड मतलब रियली रिक्वेस्ट कि हमारे बच्चों को डे 1 से जब वो स्कूल में आ जाता है, क्लास 5-6 से आप स्किल डेवलपमेंट वाली चीजें भी डालो उनके करिकुलम में. आप उनको मैथ्स के ज्योमेट्री, अलजेब्रा मत सिखाओ. क्या जरूरत है? एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिया काफी है. उसके बाद आप उसको कारपेंट्री सिखा दो, बेकरी सिखा दो, कुछ ऐसे स्किल सिखा दो कि जब वो 12th के बाद जब वो निकलेगा बाहर तो कोई ना कोई वोकेशनल सेटअप में तो चले जाए. अगर उसने कुछ कुकिंग रिलेटेड सीखा तो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए वो अप्लाई कर सकता है. कारपेंट्री या ऐसे कोई कोर्सेज किया तो वो ऐसे वोकेशनल सेटअप में कहीं वो कर सकता है. हर बच्चे को मोमबत्ती और लिफाफे तो नहीं बनाने हैं ना. तो ये एक बहुत बड़ा लैग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. और सारे यंगर पेरेंट्स इंक्लूसिव स्कूल में, आई अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स, वो मतलब लड़ रहे हैं कि मेरे बच्चे को स्कूल में रखो, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि 12वीं तक करके भी उनके बच्चे का कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या एजुकेबल लेवल का नहीं है. तो वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी मैंडेटरी नाउ इन स्कूल्स आल्सो. You're absolutely right. In fact, the plight which you're talking about is not just for the kids on the spectrum, but also for all the other children. In fact, engineers आज की डेट में Swiggy and Zomato के काम कर रहे हैं. तो I mean, India के अंदर unemployment की बहुत बड़ी problem, and you know the reason also. But yes, vocational skills, I think that is something which you've hit it, because if you early intervention, जैसे early intervention वैसी early skill set installment अगर पहले डाल दिया तो he will be one of the best, because initial level पे as a young child or as a young adult, the sooner the better with respect to the skill sets, because the biggest breakthrough is unemployability. Because unemployment, they say that around 85% children on the spectrum, they are unemployed, and only 15% they are again on a hoity-toity way. I would say that 15% children who are working also, they are either fired or they are asked to leave after few months. So that is also happening. क्योंकि हमारे में ना डिसेबिलिटी, जो विजुअल डिसेबिलिटी होती है ना, उसको ज्यादा वो दिया जाता है. अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनका कॉग्निशन, उसके तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो उनको जॉब्स मिल जाते हैं. आप लाइफस्टाइल में मैकडॉनल्ड्स में सब देख रहे होते हो, ठीक है. बट ऑटिज्म एक हिडन डिसेबिलिटी भी है, ठीक है. हमारे बच्चों को फिजिकली आप देखोगे तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं दिखता है, तो इसीलिए क्या होता है, वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं. एंड वो ऑब्वियसली सोशल उनके डेफिसिट्स होते ही हैं, तो उनको कोई स्किल सेट भी आपने सिखाया नहीं, 12वीं तक करवा भी दिया, एंड आगे क्या. सो एक व्हाट आफ्टर अस सोलोमन, वो तो तुम भी और मैं भी, हम लोग सीख रहे हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन लाइक कार्तिक जो एजुकेबल नहीं है. तो कहाँ पे मैं उसको रखूंगी, किस जगह पे, जहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा ना कुछ कमाई से ज्यादा सेल्फ एंगेज हो सके, पूरे दिन खाली ना बैठा हो. एंड दैट इज समथिंग सीरियसली आई वुड वांट द गवर्नमेंट to do. I want that more than any other thing. Is the government doing something? There are a lot of NGOs who are doing it at an independent level, but again चक्कर क्या है, there is no check mechanism कि ये जो NGOs कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना फ्रूटफुल होगा. ओके, इसके लिए बाद में कोई मार्केट बनेगा, ये चीजें बनी है, तो क्या इसके लिए एक्चुअल कोई मार्केट या डिमांड होगी कि ये चीजें प्रोडक्ट्स बिकेंगी. आप सिंपैथी पे तो चीजें नहीं बेच सकते ना, चीजों को नहीं कर सकते. और अपस्किलिंग, अब तो कंप्यूटर्स पे 3D प्रिंटिंग, कितनी सारी चीजें आ सके, तो कितनी सारी नई चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए. वो चीजों को भी करिकुलम अगर गवर्नमेंट अपग्रेड करे और ऐसे करिकुलम स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट कर दे कि दिख रहा है कि ये बच्चे को अब ज्यादा फ्रैक्शंस और ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही, पर हाँ ये बच्चा पैकेजिंग अच्छा करता है, उससे बोला जाए इस डब्बे में 6 आइटम्स ही रखने हैं, तो वो 6 आइटम गिन के रख सकता है और अच्छे से पैक कर देगा. तो व्हाई नॉट स्टार्ट दोस थिंग्स. स्टैकिंग अच्छा
अच्छा करता है, तो कितने स्टोर जैसे बिग ऑफिस मैनेजमेंट एंड हाँ, अगर आपको फोटोकॉपी करानी तो उसमें ज्यादा कॉग्निशन का वो नहीं, या गार्डनिंग, कई बच्चा गार्डनिंग में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्विमिंग, तो आप वो वाले स्किल सेट्स उसके डेवलप करने की करो ना, उसी का थियरी, उसी का प्रैक्टिकल चीजें करवा दो बच्चे को, दैट कुड बी मोर बेनिफिशियल। वरना क्या हो रहा है, हम एनजीओस पे डिपेंडेंट है, और एनजीओस में NGOs कितने effective है वैसे? What because since you're telling that there is no tab on what exactly they're doing, because efficacy वही पता चलता है because they normally get the grants from the government and after that they say that यहाँ पे कर रहे हैं, but again towards the end there is certain output which normally an NGO gives, और most of the NGOs जो मैंने भी दे रखे हैं यहाँ पे, मैंने डोनेशन वगैरह दे रखे हैं, इस बच्चे का हमने ये दिया है, इस कैंसर का हमने ट्रीटमेंट करा है, and they just send a receipt. But if you ask, because यहाँ पे मेरे को लगता है कि it's a disability or a disorder as we are trying to understand, but again if having the right kind of interventions and early interventions and skill set development, it doesn't seem like a disability or a disorder. It is a bright future of a child, because जैसे बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करके नौकरी दिलवा देता है, it's I think the same kind of an ordeal I think even an NGO should go through. Definitely. But again, how passionate are they? That is something which is questionable. That is totally dependent on person to person, how much effort they are taking. Yes, it's entirely dependent on that person. And I think as a parent, all of us should be crusaders, for this cause. That is our, I think, responsibility also, because changes अगर हम start करेंगे तब जाके धीरे धीरे मेरी ने जैसे स्टार्ट किया, या देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स वही आगे लेके जाएंगे. Again, parent in itself is a responsibility, और उसके ऊपर अगर आप एक parent of a child with on the spectrum, because not everybody has that attitude, और आप तो बहुत ही chilled out parent हो, ठीक है? What keeps you going, and how did you develop this chilled out attitude, and what is the attitude which a parent should have early in life so that they navigate through their parenthood with a child on the spectrum without any resentment or grudges? देखो, मैं एक ये चीज जरूर, you never lose your passions. ठीक है, we have, जब वो शुरू में वो झटका लगता है, वो थोड़ा रिकवर करने में 4-5 साल लग जाते हैं हमें भी, पर उसके बाद ना, get back to doing things you love, you are passionate about also. Take out time for yourself. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे को या सासू माँ को या ससुर को या फादर्स को, अगर आपने अपने लिए 1 घंटा निकाल लिया. So if you are passionate about running, like I love running, that's my adrenaline rush. I love reading. I love writing poetry. I love collecting fridge magnet souvenirs जहाँ से मिलता है, ठीक है. I love न्यूज़पेपर में कुछ भी कोई important न्यूज़ आता है तो मैं उसको कटिंग निकाल के मैं उसको सालों से उसको फाइल करती जा रही हूँ. तो मैंने ऐसे बहुत हॉबीज रखे. Recently I picked up gardening because that was in fact a vocational training I was thinking for Karthik, क्योंकि गार्डनिंग में बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम नहीं था कि मैं उसको सिखा दूं पॉट का मिक्स बना के कि इसको इतने लेवल में डालना है, फिर पौधा लगाना है आपको, रिपोर्टिंग करना है एंड ऑल. तो मेरे को खुद ग्रीन थंब नहीं है, मेरे को गार्डनिंग का ABC नहीं आता था, बट मैंने कार्तिक के लिए वो सीखा था. उसने तो नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ लिया, बिकॉज मुझे लगा आजकल सब गिफ्ट करते हैं तो प्लांट ही गिफ्ट करते हैं, सो वो कार्तिक के लिए एक अच्छा वोकेशनल हो सकता है. बट आई एम स्टिल सीरियस अबाउट इट, आई विल डू इट, तो be passionate, go back to your hobbies. If you love dancing, go get back to dancing. If you love singing, go and learn singing. 1 घंटा अपने लिए दिन में जरूर निकालो एंड करो, तभी आप अच्छे से अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हो. एंड टेक योर चाइल्ड एवरीवेयर. एंड हियर इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि जो फादर्स होते हैं, स्पेशली अगर बॉयज हैं, अडोलेसेंस के बाद ना फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है जो वो अडोलेसेंस वाला जो स्टेज को कवर करने के लिए. प्लीज वो मदर से मत एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि हेयर ग्रोथ हो रहा होता है, उसको शेव करना है, ठीक है, या मतलब जो मैस्टरबेशन वाला स्टेज आता है वो फादर समझाए तो मतलब ज्यादा बेटर होता है. इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अ मदर to do this and it should not be done also. So जहाँ तक उसके, this is something जहाँ मैंने fathers को देखा है, some because stepping back की कुछ father होते हैं नहीं करते कि I remember चेन्नई से मुझे एक mother ने call किया कि उसका 23-year-old son है and she has to give a bath to that a child. Father refuses to do. अब 23-year-old child है ही नहीं, हम लोग तो हम बच्चे बोल रहे थे he's a man and the mother said कि मैम it's so embarrassing. और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं ना इसके पढ़ाई के पीछे लगी रही. मुझे लगा academics आ
जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मुझे डेली लिविंग स्किल्स भी उसको इक्वली सिखाने चाहिए थे। सो आई थिंक दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट मैसेज कि पढ़ाई के पीछे जो डेली लिविंग स्किल्स है वो आप कभी ना भूलिए, सिखाइए शुरू से बच्चे को कि भाई खाना खाने के बाद प्लेट धोना भी पड़ता है, प्लेट को सिंक पे रखना है, धोना है। मेरे कपड़े अगर गंदे हैं तो मुझे उसे वॉशिंग मशीन में डालना होगा या वॉश बास्केट में डालना होगा। मेरी चादर बदलनी चाहिए, मेरा तौलिया बदलना चाहिए, मेरे को नहाना डेली जरूरी है, ब्रश ऐसे करना चाहिए। वो आप ये मत सोचिए 15-16 साल में जाके आप सिखाएंगे, तब आप नहीं सिखा पाएंगे। और प्राइवेसी, कपड़े प्राइवेटली ही प्राइवेसी में ही बदलने हैं, यानी कि सबके सामने आप बदल रहे हो एंड ऑल। ये चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आप पढ़ाई पे फोकस करते हो। बाद में कई बार हम रियलाइज करते हैं देन इट इज टू लेट, तब वो रिजिडिटी आ चुकी थी और बच्चा नहीं सीखता है। I would like to talk about neuroplasticity, and I think I'll keep it for the next podcast. Maybe we'll try to cover that. So yeah. So anyways, thank you so much, Simi, and valuable inputs from your end. And I think it is just the tip of the iceberg. Simi has a lot. Thank you so much. Those are valuable nuggets, and I will see you in the next pod very, very soon. Thank you.